أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. تمام قسموں کی حمد و ثنا تعریف کی جائے بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ نے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔ قابل احترام بزرگوں، جی دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورۃ بقرہ سورہ نمبر 2 جو کہ پہلے پارے میں آتا ہے، اس کی آیت نمبر 108 ہے، جو کہ رکو نمبر 13 کی یہ آیت ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان رکوعات میں اور ان آیتوں میں بنو اسرائیل کی جو عقائد اور جو اعمال اور ان کے جو رذیل خصائل موجود تھے ان کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور ان کو رد کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کے افراد میں یہ رذیل خصائل نہ پائے گئے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ یہ بنو اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ توریت کو منسوخ یا نسخ والا نہیں مانتے تھے، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ موسیٰ ہی الٹیمیٹ اور آخری نبی ہے، اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی توریت وہی ایک آخری کتاب ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے اب کسی کی نہیں چلنے کی، صرف آخری نبی ہی کی شریعت چلنے، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو اس سے پہلے کی ساری کتابوں کو بھی منسوخ کر دیتی ہے، گویا کہ ان پر کسی قسم کا عمل نہیں ہوتا، اب صرف اور صرف قرآن مجید پر ہی عمل ہوتا ہے۔ مگر یہ بنو اسرائیل یہودی کہتے تھے کہ نہیں، اب توریت یہ ایک واحد کتاب، اس پر عمل کیا جانا چاہیے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے بنو اسرائیل، تم تو صرف تمہارے ایک کتاب کی بات کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے جب سے یہ دنیا بنی ہے نسخ کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ نسخ اللہ ہی کی طرف سے ہے، منسوخ کرنا، ایک احکام کے بدلے دوسرے احکام کو لا لینا، ایک حکم کے بدلے دوسرے حکم کو لا لینا، کبھی جو چیز حلال تھی کبھی حرام کر دینا، کبھی جو چیز حرام تھی اس کو حلال کر دینا، یہ احکامات میں تبدیلی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کی سنت اور عادت تب سے یہ جب سے کائنات پیدا کی گئی ہے، تو اللہ کی طرف سے جب یہ نسخ کا سسٹم ہو سکتا ہے تو تمہارا یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے کہ تم کہتے ہو کہ اب صرف جو ہے توریت پر ہی عمل ہوگا، توریت کبھی ناقابل عمل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ نے آیت نمبر 106 وغیرہ میں اللہ نے کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، اے انسانوں، ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آیت سے مراد مسئلہ اور حکم ہم لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس کے جیسی ہی ایک اور آیت ہم نازل کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم آیتوں میں اور احکامات میں منسوخ کا سسٹم رکھ سکتے ہیں،
तो जाहिर सी बात है मेरे आखिरी नबी के आ जाने के बाद इससे पहले के अंबिया मनसूख और इससे पहले की जितनी किताबें सब मनसूख, अब सिर्फ और सिर्फ अमल होगा तो सिर्फ कुरान मजीद पर होगा और ईमान लाया जाएगा और पैरवी की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ रहमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जाएगी, किसी और शख्स की, किसी और नबी की नहीं की जाएगी। जैसे कि हदीस में एक और वाक़या मिलता है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा तौरात पढ़ रहे थे। आपने पूछा क्या पढ़ रहे हो? अल्लाह के रसूल तौरात पढ़ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, आप सल्लम गुस्से में आ गए और कहा कि उमर याद रखो, अगर मूसा भी अगर आज होते तो उनको मेरी ताबेदारी के अलावा कोई चारा न होता, मेरी इत्तिबा के अलावा कोई चारा न होता। मूसा तो गुजर गए, अब मैं आ गया, मेरी शरीयत ही अब अमल पैरा होगी, मेरी शरीयत पर ही अमल किया जाएगा, किसी और की शरीयत अब नहीं चल सकती। अल्लाह ने कहा ये नसख का सिस्टम तो अल्लाह ने रखा। तो कुल कुरान मजीद में 3 किस्म के नसख हमें मिलते हैं। नसख सिस्टम, मनसूख वाला सिस्टम, अहकामात में रद्द बदल और तब्दीली, एक का आ जाना दूसरे का आना, एक जो हलाल था बाद में हराम हो जाना या एक जो हराम था बाद में हलाल हो जाना, ये नसख सिस्टम कुरान मजीद में 3 किस्म का मिलता है। एक मुतलकन नसख, यानी उसकी तिलावत भी मनसूख है, हुक्म भी मनसूख है, उस पर अमल नहीं होता। दूसरा है नसख माअ तिलावा, यानी आयत, वो आयत जो मनसूख हो गई वो आयत भी अरबी के साथ में कुरान में मौजूद है, वो आयत जो नासिख है वो आयत भी कुरान मजीद में मौजूद है। दोनों आयतें कुरान मजीद में मौजूद है, मगर वो आयत जो मनसूख है तो हुक्म मनसूख है, तिलावत बाकी है। नसख माअ तिलावा, आयत तो कुरान में मौजूद है मगर हुक्म उसका मनसूख हो चुका है, पढ़ते जरूर है मगर उस पर अमल नहीं कर सकते। ये अमल का सिस्टम, अमल का तरीका बदल गया। जैसा कि एक मैंने मिसाल दी थी कि आप वसल्लम से जब भी कोई सरगोशी करना हो, नजवा करना हो तो सबसे पहले खैरात करे, ये हुक्म पहले था। अब बाद अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने देख लिया कि अब तुम लोग उससे बात नहीं है, जाओ अपने नबी से जब भी सरगोशी करना चाहो तो बगैर सबका खैरात के भी करो, ये नासिख आयत बाद में है। इसी तरह अगर हम रमजान के मसाइल देखें, इसी सूरह बकरा ही में मालूम होता है कि अल्लाह ने पहले हुक्म दिया था कि अगर कोई सदका व खैरात करने की और एक मिस्किन को खाना खिलाने की कुव्वत और ताकत रखता हो तो उसको रोजा रखने की जरूरत नहीं। पहले ये हुक्म था कुरान का। बगैर रोजा रखे भी अगर वो मालदार है, मिस्किनों को खाना खिला देता है तो ये हुक्म उस पर से टल जाएगा। ये आयत बाद में मंसूख हो गई। उसी रुकू में आगे जाकर अल्लाह ने नासिख आयत बता दी कि अब जो कोई रमजान का महीना पाए फल यसुम, उसको चाहिए तो जरूर रोजा रखे। अब वो बच नहीं सकता, पैसा होने के बावजूद सबका खैरात करके या खिला पिला कर बच नहीं सकता, खर्च करके उसको रोजा रखना पड़ेगा, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो। अब वो जो पहले वाली आयत थी मनसूख आयत, अब उसका हुक्म जो था ना वो मनसूख से मुराद मुंतकल हुआ। बहुत सारे लोग, मैंने इससे पहले कहा, काफी तफसील में मैंने कहा कि मनसूख का मतलब सिर्फ लोग ये समझते ना काबिल अमल, ऐसा नहीं है। मनसूख का मतलब मुंतकल होना भी है। वो जो रोजे का हुक्म था वो मुंतकल हुआ, जहां पहले सारे अफराद पर लागू था अब उन अफराद पर आ गया जो बूढ़े हैं, रोजा रखने की ताकत नहीं रखते, पैसा है तो वो अगर मिस्किनों को खाना खिला दे तो वो जो मनसूख हुक्म था उस पर भी अमल हो रहा है आज। इसी तरह हामिला औरत, इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत, ये लोग भी अगर रोजा न रखना चाहे रमजान के दिनों में फर्ज रोजे और पैसा है तो मिस्किन को खाना खिलाकर उसे बच सकते, या फिर उसकी कज़ा बाद में कर सकते। खुसूस ऐसा बीमार शख्स और ऐसा बुरा शख्स जो इस्तेताअत रखता ही नहीं है, ऐसे शख्स के लिए मिस्किन को खाना खिलाकर उस मनसूख आयत पर अमल किया जाता है। तो कोई कि हुक्म मनसूख से मुराद ना कभी अमल नहीं हुआ बल्कि मुंतकल हुआ, ये नसख माअ तिलावा। और तीसरा है मनसूख तिलावा, यानी आयत के जो अल्फाज है उसकी तिलावत मनसूख हो गई, हुक्म उसका आज भी है।
आज भी अमल करते हैं। जैसा कि मुहत्तरम इमाम मालिक की हदीस का हवाला देते हुए मैंने कहा था कि कुरान में एक आयत थी कि शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर जिना करें तो उन्हें रजम कर देना चाहिए, ये आयत थी। आज इसके अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद नहीं, मगर हुक्म इस्लाम में बाकी है, अहादीस से इसका सबूत मिलता है, आज भी इस हुक्म पर अमल होता है। तो इस किस्म की 3 नस्ख हमें कुरान मजीद में मिलती है। इसी तरह अहादीस में भी मनसूख हदीसें, नासिख हदीसों का सिस्टम पाया जाता है। मगर एक बात अच्छी तरह याद रखें, किसी भी हुक्म को, किसी भी मसले को, किसी भी बात को मनसूख करने के लिए नासिख हुक्म, नासिख आयत, नासिख हदीस का होना जरूरी है, शर्त है। उसके बगैर कोई हुक्म मनसूख नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि बाज लोग बहुत सारे दीनी मसाइल में क्या कहते हैं, फला हदीस है इस वजह से फला हदीस मनसूख हो जाती है, जबकि दोनों में कोई तालमेल और कोई जोड़ नहीं होता। दीन के बहुत सारे मसाइल को क्या करते हैं, मनसूख कहकर छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ा नहीं जा सकता। अगर वो हदीस सही है उस पर जरूर अमल होगा। इस लिहाज से मैंने पिछले हफ्ते, पिछले दर्स में ये उसूल बतलाया था कि जिस तरह अल्लाह की किताब कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकरा सकती, ये अल्लाह की तरफ से, इसी तरह एक कुरान की आयत से सही हदीस भी नहीं टकरा सकती, चाहे आप का कौल हो, फेल हो, चाहे तकरीर हो, इजाजत हो, क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से। इसके साथ से बहुत सारे हवाले, बहुत सारे सीरत के ताबना पहलू मैंने आपके आगे रखा कि किस तरह अहादीस भी अल्लाह की तरफ से है। जैसा एक दलील के तौर पर मैंने ये दिया था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म पूरे कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। आप 16-17 महीने तक आप इस पर अमल करते हैं, किसकी मर्जी से? ये अल्लाह की मर्जी से। ये अहादीस में मौजूद है, ये कुरान के खिलाफ नहीं है। इसीलिए हदीस की अहकाम को मनसूख करने के लिए अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया कि आप तो मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। गोया कि हदीस को मनसूख करने वाली आयत भी हो सकती है। जिस तरह एक कुरान की आयत दूसरे कुरान से नहीं टकरा सकती, एक कुरान की आयत से एक सही हदीस भी नहीं टकरा सकती, और उसी तरह तीसरा उसूल है कि एक सही हदीस से दूसरी सही हदीस भी नहीं टकरा सकती। अगर टकराता हुआ नजर आ रहा है तो ये हमारी कम इल्मी और गलत फहमी का नतीजा हो सकता है। हकीकतन ये दोनों चीजें, वही मतलूब और वही गैर मतलूब, यानी कुरान मजीद और अहादीस, ये दोनों के दोनों का मंबा और जरिया और सोर्स अल्लाह ताला है, इसलिए इन दोनों में टकराव नहीं हो सकता। ये थी कुछ बातें आयत नंबर 106, 107 के ताल्लुक से। अब आइए 108 की तरफ बढ़े। इसमें अल्लाह ताला कहता है, हम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल मन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान फक़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील। हम यानी क्या, हम यानी सवालिया जुमला है, क्या तुरीदून, तुरीदून लफ्ज बना हुआ इरादा करने, इरादा बोलते हैं। हम तुरीदून, क्या तुम लोग ये इरादा करते हो, इरादे से हमारा चाहना है, क्या तुम ये चाहते हो, अन तसअलू, अन यानी के बोलते हैं के, अन तसअलू के पूछो, तुम लोग सवाल करो, सअला यसअलू के माने पूछने के, इसको हम उर्दू में सवाल इस्तेमाल करते हैं। अन तसअलू के तुम सवाल करो, रसूलकुम तुम्हारे रसूल से, कमा वैसे ही जैसा के, कमा यानी वैसे ही जैसा के सुइला मूसा, पूछा गया मूसा से, मूसा से सवालात किए गए, मिन क़ब्ल इससे पहले। अल्लाह ये सवाल कर रहा है कि क्या है, ये सवाल तनकीदी है, ये सवाल क्रिटिक्स के तौर पर है, ये सवाल ये इफ़हाम इनकारी है, सवाल है हम इनकार करने के लिए। मतलब क्या तुम ये चाहते हो कि मेरे नबी से सवालात करो वैसे जैसे मूसा से किए गए, मत करो, ये कहना मत करो, मत करो ऐसा। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी बात अल्लाह आगे कह रहा है, आगे के टुकड़े में यहाँ पर क्या है, तो इसके बाद अभी ये बात शुरू होती है, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान। सोचने का मुकाम है कि आप नबी से कुछ सवालात कर रहे हैं वैसे जैसे मूसा से कर रहे हैं, तो हमको क्या लगता है कौन सा बड़ा गुनाह हो रहा है? सवाल ही तो कर रहे हैं, मसला पूछ रहे होंगे, फतवा पूछ रहे होंगे, कौन सा बड़ा गुनाह है?
अल्लाह कहते मैं यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, जो कोई कुफ्र के बदले ईमान के बदले कुफ्र ले ले, फकद वल्ल सवा सबील, यकीनन उसने फकद वल्ल यकीनन वो गुमराह हो गया, वल्ल यानी गुमराह हो गया, सवा सबील, गुमराही में बहुत सारी किस्में हैं, ये गुमराही कैसी है, सवा सबील यानी बहुत ही बुरे रास्ते की गुमराही, यानी एक शख्स घूमते घूमते किसी गलत रास्ते पर निकल जाए, मगर उस रास्ते पे हालांकि गलत रास्ते पर चला गया तो फायदे भी हो जाते, फिर वापस मंजिल पे आ भी जाता है, मगर वो शख्स जो किसी गुमराह रास्ते पर निकल पड़े और नुकसान भी हो और कभी राह पर न आए तो बुरा रास्ता, गुमराह भी हुआ और वो भी बुरे रास्ते पे। अल्लाह ने सवालात करने को यही कहा, कसरत सवाल को अल्लाह सुन, कसरत सवाल को अल्लाह ने क्या कहा, ये बुरा रास्ता है जिससे इंसान गुमराह हो जाता है। समझ नहीं आता, अक्सरियत आज मुसलमानों की अक्सरियत बिलखुसूस नौजवान इस बीमारी में मुब्तला है, सवाल 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 सवाल, इन्हीं सवालों ने इस्लाम की शक्ल भी बिगाड़ दी, जहाँ एक मसला सीधा साधा और क्लियर था, वहां पे 5-6 ऑप्शन आ जाते हैं, अब ये करना कि ये करना, तो कहते फला मौलाना इस तरह भी कहा है, फला इस तरह भी कहते हैं, फला मुफ्ती साहब इस तरह भी करते हैं, अब आप देखिए क्या करते हैं। अब आम इंसान अवाम सोचे पड़ जाता है मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिए, ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, करना तो क्या करना चाहिए। ये सवालात के अंबार की वजह से ये इस किस्म के फतवे आए। अगर सवालात न किए जाते और मसाइल का हल कुरान मजीद से बराह रास्त और अहादीस से बराह रास्त लिया जाता, सहाबा के अक़वाल तक उसको मुक़य्यद किया जाता, अपनी अकल अपनी समझ में लगाई जाती, और लगाई जाती तो इनको समझने में, कुरान मजीद और अहादीस को समझने में अगर लगाई जाती तो मसला बिल्कुल क्लियर हाँ या ना का होता। आज हाँ या ना का है ही नहीं, कोई भी फतवा, कोई भी दीन इस्लाम का मसला उठा कर देते, कोई भी। जैसा कि आप सोते हैं, सोने के बारे में पूछ कर देख लो, 10 बातें आपको मिलेंगी। आप जागते हैं, जागने के बाद क्या करना चाहिए, 10 बातें आपको। सीखते हैं आप तो सब क्या करना चाहिए वो पूछ कर देख लो, उसके अंदर भी 10 सवाल। अगर आप जमाई लेते हैं उसमें भी 10 बातें हैं। एक साहब ने जमाई ली, अब अचानक बात याद आई, बताओ जमाई लेते का अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा क्यों ऐसा पूछा आपने, मैंने पूछा, बोले नहीं जमाई जो है ना अकल लगाई, तीन इस्लाम में अकल लगा, कहते जमाई जो है ना वो शैतान की तरफ से, ठीक जो अल्लाह की तरफ से, जब ठीक आते तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, तो जमाई तो अस्तगफिरुल्लाह कहता हूँ। मैंने कहा कि शरीयत से तुमने बनाई है, जहाँ ठीक की दलील हदीस से लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, तो जमाई की दलील हदीस में क्यों नहीं है अस्तगफिरुल्लाह कहने की। यहाँ तो अपनी तरफ से शरीयत साजी कर रहे हो, यहाँ तो अपनी तरफ से दीन बना रहे हो और आधा अमल हदीस से कर रहे हो। हाँ क्या जवाब, इसका मतलब जमाई लेने पर अस्तगफिरुल्लाह कहने का नहीं है क्या, तो होता तो अल्लाह के रसूल जरूर बतलाते, एक भी हदीस में नहीं है। अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म दिया, जब जमाई आए मुंह में हाथ रखो, ये तो अमल नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने कहा जब जमाई आए तो आवाज मत निकालो, इस पर शैतान हंसता है, जोर जोर से हाँ हूँ की आवाज निकालते हैं। जो हदीस में उसके खिलाफ करेंगे और जो है ही नहीं उसके अंदर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी क्या कहते हैं खुशफहमी के साथ उस पर अमल करते हैं और रोकने पर रुकते भी नहीं। एक साहब ने ठीका अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैंने कहा क्या हमकल्ला, फिर एक बार मैं ठीका, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उन्होंने कहा क्या हमकल्ला, मैंने कहा ये हदीकुमुल्लाह इससे कालकुम, बोले ये क्या बोल रहे हो, बोला भाई ये हदीस में है ऐसा कि पूरे अल्फाज इसी तरह है, ठीक है, नहीं बोले मेरे को जो मालूम है इतना ही मालूम है, और आपके मालूम होने से मेरे मालूम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोला आपको हो सकता है मेरे ज्यादा मालूम होगा, तो हो सकता है मेरे ज्यादा मालूम होगा, असल सवाल ये है कि कुरान मजीद में क्या है और अहादीस में क्या। अमल अल्लाह उसके रसूल की बातों पर होगा कि आपकी और मेरी अकल पर होगा। नहीं इतना भी बोल दिया तो चल जाता, एक फतवा निकल जाओ, क्या कहा उन्होंने, इतना भी बोल दिया तो चल जाता, पूरा बोलने की जरूरत नहीं। बोला भाई हदीस में तो सिस्टम तो पूरा ऐसा है, जब भी कोई मसला निकाला जाता तो एक हदीस नहीं निकाल जाता, कुरान मजीद की पूरी आयतें पूरी अहादीस एक जगह जमा करके एक मसला निकलता है। हो सकता है एक हदीस से एक बात हो, दूसरी हदीस से उसकी पूरी बात होती है,
दोनों हदीस को मिलाने के बाद जो मसला निकलता है वो जवाब होता है, वो फतवा होता है। तो इस तरह आज इस्लाम बिल्कुल ही क्या कहते हैं, एक ही मसले पर कोई क्लियर बात जल्दी मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि सवालात ज्यादा कर करके ऑप्शंस निकाले गए। जैसे मिसाल के तौर पर एक जहन में आ रहा है, एक किताब पढ़ रहा था मैं, और रोजा कैसे टूटता है। अब जो अहादीस में बहुत सारी किस्में बताएंगे रोजा कैसे टूटता है कैसे नहीं टूटता है। अब उसमें अगर कोई शख्स, अब जबकि हुआ ही नहीं काम कर, फिर भी एक सवाल लगा रहे, अगर कोई शख्स किसी खुले मैदान में अपना मुंह खोले पड़ा हो और उसके मुंह में कोई खाने की चीज गिर जाए और हलक तक पहुंच जाए तो क्या रोजा टूटेगा। मैंने कहा ये टूटने नहीं टूटने का सवाल इस अजम्पशन पर क्यों है। अगर वाकई ये मामला किसी के साथ हो और आप सवाल करें कोई हर्ज नहीं है, हुआ ही नहीं। अगर कोई शख्स अगर किसी के साथ अगर क्या कयामत तक के मसले अगर के साथ हल होंगे तो इस्लाम क्यों मुकम्मल हुआ। वो या कि आपका यकीन कि इस्लाम साढ़े 14 साल पहले मुकम्मल हुआ ही नहीं, तभी तो आप उसकी तकमील में लगे हुए हैं। अगर के मसाइल, ये मिसाल ऐसे नहीं दे रहा हो, आज की आयत में किसी मसले के ताल्लुक से ये लोग असल बात यहूदियों से मुनाफिकों से मुतासिर होकर बात सहाबे असल से सवाल करते थे। कभी कभी तो बेकार सवाल भी हो जाते थे, आप लोगों को बुरा भी लगता था। अल्लाह ने कहा कि हम तुरीदुन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम मेरे नबी से तुम्हारे रसूल से ऐसे सवालत करते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए गए। अगर तुम ऐसा बेकार सवालत करोगे जिसकी कोई वजह नहीं है, जरूरत नहीं है, गोया कि तुम ईमान देकर कुफ्र ले रहे हो। मालूम हुआ कि कसरत सवाल इंसान को काफिर बना सकती है। कसरत सवाल से इंसान ईमान देखकर कुफ्र को इख्तियार करता है। मतलब ये मसला छोटा नहीं है सवालात का करना, जहां जरूरत है इंसान को वही सवाल करे और ना खामोश है। मसला किसी और का पूछता कोई और है, ये तो हर जगह सिस्टम जारी है। मसला किसी और का पूछता कोई और है, इसको भी नहीं मालूम कि क्या पूछना चाहिए और इसको भी नहीं मालूम। हमारे दोस्त से ऐसा ऐसा कहते हैं कि फला साहब है, क्या ख्याल है मुफ्ती साहब इसका, आपका क्या ख्याल है। इस तरह मसाइल बिल्कुल फैल कर रह जाते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। कसरत सवाल की वजह से मसाइल पेचीदा हो जाते हैं और कभी हलाल हराम हो जाता है और हराम हलाल हो जाता है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरे मायदा के अंदर आयत नंबर 101 के अंदर अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसअकुम व इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़िलुल कुरआन तुब्दा लकुम। सूरे मायदा आयत नंबर 101, इसमें अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालों मत सवाल करो ऐसी चीजों के ताल्लुक से कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। मालूम हुआ इस आयत से सूरह मायदा की कि बाद लोग आप पर ऐसे ही सवाल करते थे कि अगर जवाब दे जाता तो खुद को ही बुरा लग जाता, तो अल्लाह ने कहा कि सवाल मत करो, कम से कम ऐसे वक्त जब कुरान नाजिल न हो रहा हो। हाँ, अगर तुमको करना ही है इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़िलुल कुरआन तुम, अगर तुम ये सवाल उस वक्त करो जब कुरान नाजिल हो रहा हो तो कुरान तो जो वही है उसके लिए तुम्हारे सवाल के जवाब उस वक्त दिए जा सकते हैं, मगर जब कुरान नाजिल न हो रहा हो तो मत करो। इस किस्म की नरमी इस आयत में तो नरमी है, मगर इस आयत में सख्ती है। इस आयत में क्या है नरमी, मायदा की आयत में इस में सवाल मत करो। हाँ, कुरान नाजिल होगा तब करो, इससे सवालत करने की सहूलत मिलती है। मगर इस आयत में अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सवालत कसरत सवाल करोगे तो तुमने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा। कसरत सवाल इंसान को हलाक कर देता है। जैसा कि बहुत सारी अहादीस है, कई बुखारी से मुस्लिम हदीस है, आपने कहा इन अज़मल मुस्लिमीन जुर्मन, के सबसे बड़ा मुजरिम शख्स मुसलमानों में वो है मन सअल अन शैइन लम युहर्रम,
वो कोई सवाल करे और उसके सवाल से पहले वो हराम न हो। हर्रमा मिन अजली मसअला, और उसके पूछने को चीज हराम हो जाए। अल्लाह ने क्या कहा, वो शख्स बहुत बड़ा मुजरिम है मुसलमानों में से जो सवाल करे और उसके सवाल करने से पहले कोई चीज हराम तो नहीं थी, मगर उसके सवाल करने के बाद चीज हराम हो गई, तो वो सबसे बड़ा मुजरिम है। मालूम हुआ कि दीन इस्लाम के मसाइल बिलखुसूस हलाल और हराम के ताल्लुक से दलाइल का देखना ये बहुत जरूरी है। जहाँ दलील आ गई, जितना हलाल किया गया उसको हलाल समझे, जितना हराम कहा गया उसको हराम समझे। अब हलाल हराम के दरमियान अगर इंसान जाए और करे और कहे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूं, अगर फलां साथ ऐसा मामला हो तो क्या करूं, अगर 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 के सवाल अगर करता है तो जो चीज हलाल थी वो भी हराम हो जाती है। मुफ्ती करम की क्यों परेशान है? सीधा सीधा सवाल नहीं होता है, सवाल में एक घुमाव होता है कि मुफ्ती भी कहता है मैं क्या जवाब दूं। तो जो चीज कभी जरूरत के तहत हराम हो सकती थी वो हराम नहीं जाती। अल्लाह ने कहा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बहुत बड़ा गुनहगार है वो मुस्लिम है, इसके सवाल करने से हलाल चीज हराम है। इसी तरह एक और हदीस सहीहैन की, आप सल्लम कहते हैं, सहाबा कहते हैं, अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अन क़ील व क़ाल व कसरत सवाल व इज़ाअतिल माल। बहुत सारी बातें हैं, उसमें 3 बातें मैं आपको दूंगा। आप साहबा कहते थे कि आप सल्लम हमें 3 चीजों से मना करते। एक क़ील व क़ाल, क़ील व क़ाल मतलब बेजा बकवास बातें करना, टाइम पास के लिए बातें करते रहना, फजूल बातें करते रहना, क़ील व क़ाल, इसकी कोई माना मतलब नहीं होता। ऐसी चीज अल्लाह रसूल ने मना किया करते। वो कसरत सवाल, कसरत सवाल, एक सवाल करने पर अगर बात पूरी हो सकती है तो खामोश रहे। ये सवाल करने से पहले अपने आप का माइंड सेट ऐसा बना ले कि मुझे ये पूछना है, सवाल किया जवाब दे। नहीं, अगर ऐसा रहा तो फिर सवाल, अच्छा ये रहा तो ऐसा, अगर ऐसा रहा तो फिर सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करने से मसला पेचीदा हो जाता है। अल्लाह ने कसरत सवाल से मना किया। इसी तरह इज़ाअतिल माल, माल के जाया करने से भी अल्लाह ने मना किया। माल हो तो उसका सही मसरफ भी हो, सही खर्च करने का तरीका भी हो, सही सिस्टम भी हो, उसको अपनी मन मर्जी से कहेंगे भी खर्च नहीं कर सकते, अल्लाह उसने सब मना किया। इसी तरह कसरत सवाल का जो नुकसान होता है वो क्या है, बड़े प्यारे अंदाज से सही मुस्लिम की हदीस में बड़े प्यारे पहराए से आई है। सही मुस्लिम हदीस है, आप सल्लम कहते हैं, अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, जरा गौर करें, क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज, जिस साल हज फर्ज हुआ, आप सल्लम उस साल अपनी उम्मतों को हुक्म देते और कहते हैं, क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज, आज अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज कर दिया, फहुज्जू, लिहाजा तुम हज किया करो। इतना ही हुक्म था अल्लाह के रसूल का, है ना। फहुज्जू, तुम हज किया करो, और कुछ अल्फाज इसमें नहीं है, कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जिससे कब हज करें कब न करें, किन हालात में करें, हर रोज करें, हर साल करें, एक दिन बाद करें, उम्र में एक बार करें, कोई लफ्ज इसमें सराहत मौजूद नहीं है। अल्लाह ने कहा फहुज्जू, लिहाजा हज करो। तो क़ाल रजुल, एक शख्स वहां बैठा हुआ था, उसने पूछा, कुल्लु आमिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल ने बोल दिया तो खामोश हो जाना चाहिए था। सवाल क्या, अल्लाह के रसूल क्या ये हज हम हर साल करें? हफ्ता सालहा सलासा, आप सलाम खामोश हो गए। फिर उस शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या हम हर साल हज करें? आप सलाम खामोश कर गए। फिर उसने सवाल किया, 3 बार उसने सवाल किया, तीनों बार आप सलाम खामोश ही रहे। फिर आप सलाम कहते हैं, तो क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ क़ुल्तु नअम वजबत, ऐ लोगों सुन लो, अगर मैं हाँ कह देता वाजिबत, तो तुम पर वाजिब हो जाता हर साल हज करना। अब क्या है, इस्लाम में कितनी सहूलत है, उम्र में एक बार हज करने की सहूलत, एक बार, इस्तिताअत है तो, नहीं है तो वो भी टेंशन नहीं, इस्तिताअत है तो सिर्फ एक बार। अगर उस शख्स के पूछे में अल्लाह से कहता अगर मैं हाँ कह देता,
कि ये सवाल ही का नुकसान है ना, सवालात ही का तो नुकसान है। अगर वो सवाल न करता तो वो हुक्म वही रह जाता। सवाल किया, आप तो खामोश है, 3 बार खामोश है, वाकई क्या सबर का पैमाना होगा आपको समझते, क्या जब्त और कुव्वत की ताकत होगा। मतलब खामोश है, बर्दाश्त किया, कहा मेरी उम्मत ऐसी है, बर्दाश्त करो। तीसरी बार असल में कहा कि अगर मैं हाँ कहता तो ये तुम पर फर्ज हो जाता। आप सलम कहते हैं तुम नहीं, आप सलम कहते हैं वो लम्मस्तता तुम, यानी तुम पर ये वाजिब हो जाता और तुम इसकी इस्तेताअत न रखते। ऐसी बात है, वो लम्मस्तता तुम, अगर ये हर साल फर्ज हो जाता है तो तुम इसकी इस्तेताअत कभी न रखते। तुम मकाल वसल्लम ने कहा जरूरी ना तरक चुकुम, छोड़ दो मुझे अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं। मतलब क्या हुआ, मैं जितना बोलूं उतना ही करो, मैं जहां पर तुम्हें न छेड़ू तुम मुझे न छेड़ो, मैं जितना कह दूं उतना ही अमल करो। ज्यादा खुरेद कर मसाइल की गहराई और गहराइयों में मत जाओ। जरूरी मुझे छोड़ दो, माँ तरफ तुम, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं फइन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुआलिकुम। ये हदीस का हवाला बार बार अपने दूसरों देता आया हूँ, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसके अरबी मतन के साथ आपके आगे में पढ़कर थोड़ा आप सल्लम कहते हैं, आप तो ने कहा इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम, बेशक हलाक हो गए इससे पहले के लोग बिकसरति सुआलिकुम, सवालात करने के, इससे पहले के लोग कसरत सवाल की वजह से हलाक हुए। वख्तिलाफिहिम अला अंबियाहिम, और दूसरी वजह क्या थी हलाक होने की, अंबिया के साथ इख्तिलाफ करने। जब नबी कहे तो मान लेना, नबी के साथ जब सवाल जवाब होगा तभी इख्तिलाफ होगा ना। जो लोग खामोश बैठे हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लड़ रहे हैं। जो लोग आपस में बहुत मुबाहिसा कर रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं, उन्हीं के ताल्लुक से कहा जाता है कि दोनों लड़ रहे हैं। तो जो अंबिया के साथ मुजाहिदा हो, मुबाहिसा हो, झगड़ा हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे लोग इससे पहले के लोग हलाक कर दीजिए। पैदा अमरतुकुम बिशैइन, लोगों सुन लो, अगर मैं किसी चीज का तुम्हें हुक्म दे दूं तो मिनहु मस्तताअतुम, तो अमल करो सर जितनी तुम में इस्तेताअत है। वैदा नहा वैदा नहीतुकुम अन शैइन फदऊ, अगर मैं तुम्हें किसी चीज से रोक दूं तो उससे रुक जाओ, इतना ही करो। हुक्म करो तो अमल करो, रोक दूं तो रुक जाओ, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। सवाल करोगे तो मसाइल पेचीदा होते जाए। तो ये सही मुस्लिम हदीस से मालूम हुआ कि अगर सवालात करते रहे तो हो सकता था कि हज हर साल फर्ज होता तो मुसलमान इस पर अमल न कर सकते। उसी तरह इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से उनके मानने वालों ने, बनो इस्राइल ने, यहूदियों ने सवाल किया, क्या मूसा हम गाय को विवाह करने में तैयार है मगर वो गाय कैसी हो, सवाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातचीत हुई, कहा कि वो गाय ऐसी और ऐसी हो, किसी जगह क्या कहते हैं खेत में काम की न हो, नौजवान हो। फिर पूछा और कैसी हो, ऐसी हो कि उसके न कोई नुक्स न हो, दर्द रंग की खूबसूरत हो। फिर कैसी हो, पूछते गए मसला पेचीदा होता है। बड़ी मुश्किल से हजारों गायों में एक गाय बड़ी मुश्किल से मिली। देखिए अमल करने के लिए कितनी दिक्कत हुई, रास्ता तंग से तंग होता गया। अगर कह दिया गया था कि गाय जुदा करो तो कोई भी गाय हो सकता है उसमें कोई नुक्स हो, अल्लाह कबूल कर लेता, हुक्म की पैरवी की वजह, हुक्म की ताबेदारी की वजह से हो सकता है उसको भी कबूल कर लेता। और सवालात करने की वजह से मसाइल भी पेचीदा होते गए। इसलिए कुरान में एक और जगह अल्लाह ने कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में बहुत सारी वो चीजें जो हलाल थी हराम कर ली थी, वही चीजें इन बनो इस्राइल में चली आ रही थी। उनके अमाल की वजह से अल्लाह ने बहुत सारी चीजें, बनो इस्राइल के अमाल की वजह से बहुत सारी चीजें को हलाल से अल्लाह ने हराम कर दिया। अमाल, अकाइद, कसरत सवाल, हलाल चीजें हराम हो जा रही है। फिर उम्मत मोहम्मदिया पर जब इस्लाम मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीयत मिली, तो इससे बहुत सारे मसाइल अल्लाह ने आसान कर दिए। वो चीजें जो हराम ही नहीं कभी, अल्लाह ने इसको फिर से हलाल कर दिया, वक्ती तौर पर उन पर हराम कर दिए गए। तो कसरत सवाल इंसान को हलाक कर देता है। इसलिए कसरत सवाल से इंसान अपना ईमान भी बेच देता है और कुफ्र को इख्तियार कर लेता है। इसलिए अल्लाह ने कहा जो कसरत सवाल में मुब्तला हो जाए वो असल में न सिर्फ गुमराह हुआ बल्कि गुमराह हुआ और बुरे रास्ते पर गिर गया, यानी उसको खूब तकलीफ होने वाली है।
एक सवाल पूछ कर खामोश नहीं बैठेगा और दूसरा सवाल करेंगे, जब तक कि खुद के दिल के मुताबिक मसला नहीं आ जाता तब तक मुफ्ती साहब से पूछता रहेगा। जैसे दिल को लगा तब खामोश। तो ये बुरा रास्ता इंसान को नुकसान पहुंचा कर रहेगा, इंसान को गुमराह तो है ही, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा कर रहेगा दुनिया और आखिरत में। ये तीसरे बकरा की आयत नंबर 108। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबसे पहले हम लोगों में से इस कसर सवाल इबादत से अल्लाह ताला और कील वकाल बेजा फजूल बातों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।